Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing your study very well. Today we are here with new topic of equilibrium, that is relationship between equilibrium constant K and delta G gives free energy change. Gives free energy change जो है, we have studied this topic in thermodynamics and we know very well that delta G must be negative for a process to be spontaneous. किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए. एंड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स इट इज आल्सो गिवन फ्रॉम thermodynamics when a chemical reaction is not in equilibrium, then delta GR is equal to delta G naught R plus RT ln Q or QC. This is the relation as given by the thermodynamics. Delta G gives free energy change, delta G naught gives free energy change at standard condition, RT constant, ln natural logarithm, QC reaction constant होता है. When reaction is in equilibrium, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, then तब क्या होता है, डेल्टा जी आर यानी कि डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज 0 एंड क्यू सी बिकम्स इक्वल टू के सी. क्यू सी जो रिएक्शन कांस्टेंट है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बराबर हो जाता है. पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. सो लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट delta G is equal to 0, it is equal to delta G naught R plus RT ln KC. QC की जगह क्या लिख दिया, KC लिख दिया. यहाँ से क्या होगा, delta G naught R is equal to minus RT ln KC. And you know very well ln natural logarithm होता है, it is equal to 2.303 log. ln 2.303 log के बराबर होता है. ये वाली हम करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड KC. तो डेल्टा जी और KC में रिलेशनशिप है. और इफ रिएक्शन इज गैसियस फेज रिएक्शन देन डेल्टा जी नॉट आर is equal to minus 2.303 RT log KP. अगर हमारे पास गैसियस फेज रिएक्शन है उस केस में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, KP will be replaced by KC will be replaced by KP. ठीक है. So this is very important topic. You have to discuss this. Next we are going to discuss factors affecting the chemical equilibrium. First factor is change of concentration of any reactant or product. Second factor is change of temperature of the system. Third is change of pressure of the system. Fourth, addition of catalyst. And fifth one is addition of some inert gas. So firstly we are going to discuss last 2 points, addition of catalyst and addition of some inert gas. तो सर पहले हम 4th पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. Addition of catalyst. You know very well about the catalyst. Catalysts are the substances which take part in the reaction but does not consume in the reaction. यानी कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एज इट इज रिमूव हो जाते हैं, तो वो कैटलिस्ट होते हैं. हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि addition of catalyst does not alter the state of equilibrium.
एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का ऐड करना इक्विलिब्रियम की स्टेट को अफेक्ट नहीं करता, बट इट हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फास्ट। ये इक्विलिब्रियम को जल्दी से अटेन होने में हेल्प करता है। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2H2 गैस प्लस O2 गैस, दिस गिव राइज टू 2H2 गैस। तो इन दिस केस 2H2 प्लस 2H2 प्लस O2 2H2 बनता है, वाटर बनता है। सो अगर इसको विदाउट कैटलिस्ट ले, विदाउट कैटलिस्ट जो है, विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के ये जो रिएक्शन होती है, ये इसके लिए जो Kp की वैल्यू होगी, इट इज इक्वल टू 10⁴, दैट इज ऑफ वेरी हाई ऑर्डर, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। It means this reaction takes long time in the attainment of equilibrium. But when catalyst platinized asbestos substance है, as a catalyst यूज हो रहा है, is used, this reaction takes place fastly and equilibrium is attained very rapidly, और जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कैटलिस्ट का ऐड करने से इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर सकते हैं, बट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आता है, किस प्रेशर या कंसंट्रेशन पर आता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ सम इनर्ट गैस। फोर्थ पॉइंट है एडिशन ऑफ सम इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ सम इनर्ट गैस थ्योरेटिकली जो है वो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। अभी हम आपको लेट अस कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 टू गिव PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेंगे, फर्स्ट केस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हम पहले Kc की वैल्यू लिखें तो क्या होगा, PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। क्लियर है। हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वैल्यू, रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, इट मींस ये किस में है, इन क्लोज्ड वेसल है। किसमें है ये, क्लोज्ड वेसल। बंद कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन हो रही है, सॉरी इक्विलिब्रियम साइन आएगा, तो रिएक्शन जो हो रही है तो ये क्लोज कंटेनर में हो रही है, और हम गैस, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे। इनर्ट गैस कौन सी, जो नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन एटसेट्रा, उसको हम ऐड करते हैं। तो उससे क्या इफेक्ट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन टर्म गिवन है। और कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस का एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डज नॉट एंटर द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन चेंज में कोई इफेक्ट नहीं होता। बट व्हेन गैस, इनर्ट गैस के एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम की बजाय कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, किस पर करेंगे अगली बार, कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से देखना कि थोड़ा सा डिफरेंट है, एक चीज को देखना। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, मान लो हमारे पास कोई ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमारे पास
हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रेजेंट है और कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है, कांस्टेंट प्रेशर। रिएक्शन मिक्सर के अंदर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं। क्या कर दिया? इनर्ट गैस ऐड कर दी। इनर्ट गैस ऐड की तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे गैस की मॉलिक्यूल ऐड होंगी तो मोल कोलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच में, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज हो जाएगा, बट प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट प्रेशर कब रख सकते हैं? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखो गैस, इनर्ट गैस को ऐड किया तो और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन में और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर हम जो है कंसीडर कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या करेगा? इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर करेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, टू कीप प्रेशर कांस्टेंट हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम मस्ट बी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, तो उससे क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो कंसंट्रेशन अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। किसकी? दोनों के रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में देखेंगे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी की मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ऊपर जो दो कंसंट्रेशन टर्म है, नीचे एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो उस केस में क्या होगा? ऊपर वाला जो कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा डिक्रीज होगा और नीचे वाला कंसंट्रेशन टर्म कम डिक्रीज होगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? Kc डिक्रीज आएगा। तो इससे क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन Kc, Kc डिक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है। तो अब क्या होगा? अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कांस्टेंट रखना हो, ये डिक्रीज किस वजह से हुआ था? ये डिक्रीज हुआ था इन सभी की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होने से। ऊपर दो कंसंट्रेशन टर्म थी, उनका डिक्रीज ज्यादा था, नीचे एक कंसंट्रेशन टर्म है उसका डिक्रीज कम था, तो ओवरऑल जो है Kc में डिक्रीज आ रहा था। ऊपर की वैल्यू कम हो, नीचे की वैल्यू ज्यादा हो तो क्या होता है? लेस देन 1 होता है, डिक्रीज ज्यादा होता है। तो उस केस में हमें Kc को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो Kc कांस्टेंट कब रह सकता है? जब इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो या PCl5 की डिक्रीज हो, या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो। और दिस कैन बी ओनली डन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कब इंक्रीज हो सकती है? जब PCl5 और डिकम्पोज करेगा, किसमें? PCl3 और PCl2 बनाने में। इसकी PCl5 की कंसंट्रेशन कब कम हो सकती है? जब ये और ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो इन केस हम कह सकते हैं कि टू कीप द कांस्टेंट Kc को कांस्टेंट रखने के लिए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन मस्ट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान में, अगर हमारे पास इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, देन रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? दिस इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो जो अभी हमने देखा है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने इनर्ट गैस की एडिशन जो पढ़ा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में हमने पढ़ा था PCl5 ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें? PCl3 प्लस Cl2। कांस्टेंट प्रेशर पर हमने देखा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करनी है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन देखो,
इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड में एक नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ मोल्स की साइड में ज्यादा है प्रोडक्ट साइड में। और रिएक्शन किस साइड में प्रोसीड की थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड की थी। इसका मतलब कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हों। इसीलिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड थे, इसलिए रिएक्शन प्रोडक्ट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही थी। अगर लेफ्ट साइड में अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते तो उस केस में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती। क्लियर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 12th क्लास का बेसिस भी होता है, काफी चीजों का एक्सप्लेन करता है, काफी पॉइंट्स कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है केमिस्ट्री के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हम कंसीडर रिएक्शन करते हैं ए प्लस बी, और ये क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम विद सी एंड डी। इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम हो गया, इक्विलिब्रियम में है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और फिर उसके अंदर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज किया जाता है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन ए डायरेक्शन, तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है इन ए डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, दैट टेंड्स टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड, उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन किए हुए चेंज को अनडू करती है, यानी कि किए हुए चेंज को दोबारा रिवर्स करती है। सॉरी, मतलब क्या होता है, आप देखो कंप्यूटर में जब टाइपिंग करते हैं, कोई भी टाइप कर रहे हो तो कोई काम कर रहे होते हैं, तो बाय चांस जो है बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है, कुछ ज्यादा डिलीट हो जाता है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, आप कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड का ऑप्शन जो होता है अनडू के लिए होता है, यानी कि जो चेंज गलत हो गया दोबारा वही आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन हो और फिर उसके ऊपर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन का उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में वो चेंज अनडू होता हो, वो चेंज दोबारा से रिवर्स होता हो, तो दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। एग्जांपल से समझेंगे, देखना, A प्लस बी रिएक्ट टू गिव सी एंड डी, तो इस केस में ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स है, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब स्टैटिकली देखना, इफ वी इंक्रीज द, इफ वी चेंज या इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, अगर हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ए और बी की कंसंट्रेशन में इंक्रीज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी होगा। तो ए और बी में एक बार कंसंट्रेशन ऐड कर दी, बढ़ा दी, तो वो डिक्रीज तभी हो सकती है जब ए और बी रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने से उनकी अमाउंट डिक्रीज होगी, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ए और बी अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज का जो इफेक्ट होगा वो डिक्रीज करना होगा, तो वो डिक्रीज तभी हो सकती है जब ए एंड बी रिएक्ट मोर टू गिव प्रोडक्ट सी एंड डी। तो जब इसका मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन जो ए और बी, तो रिएक्शन किस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम कंसंट्रेशन सी और डी को इंक्रीज करते हैं तो इफेक्ट क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सी और डी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए, और वो डिक्रीज कब होगी, जब सी और डी रिएक्ट करेंगे, इनकी अमाउंट डिक्रीज होगी। जब सी और डी रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज अगर ए और बी की इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अगर हम कंसंट्रेशन सी और डी इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अनदर जो हम इसको क्यूसी की हेल्प से भी समझा सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्यू जो है इट इज लेस देन के हो, क्यू के से कम हो, तो क्यू सी जो है क्यू टेंड्स टू बिकम इक्वल टू के। अगर क्यू कम है के से तो क्यू के बराबर होने की कोशिश करता है, तो बराबर होने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन
प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्लियर है? और अगर Q बराबर होता है K के इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर Q ग्रेटर देन K होता है तो Q टेंड्स टू डिक्रीज, Q डिक्रीज होने की कोशिश करेगा एंड रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो इसी चीज को हम QC की हेल्प से कैसे समझेंगे? QC जो है इसके बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन C इंटू D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। ये क्या होता है? QC क्या होता है? प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन रेशो एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को छोड़कर किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अब हम A और B की कंसंट्रेशन में इंक्रीज करेंगे तो इसमें QC में क्या होगा? A और B की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट QC क्या होगा? QC विल डिक्रीज, QC क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब QC डिक्रीज होगा तो QC क्या हो जाएगा? लेस देन K हो जाएगा, और QC लेस देन K होगा तो उस केस में QC K के बराबर होने की कोशिश करेगा, तो उस केस में क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, अगर C और D के अमाउंट बढ़ा दें तो QC के अमाउंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, QC K से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में रिएक्शन K के बराबर होने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो ये तो हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, देखो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन will shift the equilibrium only for exothermic and endothermic reactions, not for those reactions in which no heat change takes place। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के ऊपर, वो सिर्फ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर होगा, उन रिएक्शंस पर नहीं होगा जिनमें नो हीट चेंज होता है, जिनमें हीट में कोई चेंज नहीं होता। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो उसमें पहले से हीट रिलीज हो रही है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो उसका इफेक्ट ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन टेम्परेचर। और डिक्रीज इन टेम्परेचर कब होगा? रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो ये रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -92.4 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। ये पहले से एक्सोथर्मिक है, वो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? वो रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वो डिक्रीज कब होगा? देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। तो इसलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराता है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उस केस में इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेक्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, and increasing temperature for the endothermic reaction makes it to proceed in the forward direction। क्लियर है? लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखें, दिस फैक्टर हैज ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले ओनली इन गैसियस रिएक्शन। पहली बात तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इसका सिग्निफिकेंट रोल होगा जिन रिएक्शन में सिर्फ गैसियस रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, और उनमें भी जिनमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है, यानी कि जिन रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन हो तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आता हो, वहां पर इस फैक्टर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर का रोल रहता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 गिव NO2। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो इस रिएक्शन में क्या है? देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जब जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट रहेगा। अब क्या कैसे रहेगा? देखो, इफ नाउ प्रेशर इज इंक्रीज, इक्विलिब्रियम में है, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे
तो ली चैटली प्रिंसिपल क्या कहता है, इंक्रीज इन प्रेशर मस्ट बी डिक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए इन विच प्रेशर डिक्रीज, जिसमें प्रेशर डिक्रीज होते हैं। प्रेशर डिक्रीज होगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स किस साइड में डिक्रीज हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो सिंस बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट होना चाहिए डिक्रीज इन प्रेशर। डिक्रीज इन प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, तो जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं रिएक्शन डायरेक्शन में जाएगी यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मींस अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किधर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं सो एन इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द कॉम्बिनेशन ऑफ, जब प्रेशर को इंक्रीज किया तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, NO2 मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो रहा है क्या बनाने के लिए, N2O4, और फॉरवर्ड में N2O4 डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है NO2 बनाने में। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी प्रेशर इंक्रीज करने पर, तो कॉम्बिनेशन जो है NO2 मॉलिक्यूल का N2O4 बनाने का वो सप्रेस करता है डिकम्पोजिशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 टू NO2, यानी कि सप्रेस करना मतलब पछाड़ना, उसको पीछे छोड़ना। तो डिसोसिएशन प्रोसेस को पीछे छोड़ देता है कौन सा, कॉम्बिनेशन प्रोसेस, यानी कि NO2 ज्यादा कंबाइन होंगे N2O4 बनाने में एज कंपेयर टू N2O4 जो डिकम्पोज होते हैं। So dear students, we have studied very important topic, very important class today. So you have to remind it and practice it again and again. तभी आप इसको याद रख पाओगे। इसका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो 100% आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या रिवर्सिबल रिएक्शन में। So again, practice more and more, and thank you and have a nice day.